Even if you win the rat race, still you remain a rat only. So it is not about winning the race, it is about getting freedom from the rat race. So that is a concept made me to think about what I really should do in my life so that I can get a freedom from this rat race. And that is where the concept of money and life freedom got into my mind. And that's why I say that money is a mediator for you in the journey of life. To make it fulfilled, that is what you are talking about, the holistic financial life, or what I say, money and life freedom. My name is Nitin Sawant. I am a director at NS Wealth. We are with first podcast on the context of holistic financial planning, focusing on dream, decide, do aspects. Today we have Mr. Ashish Bhave, money and life coach. Thank you, Ashish sir, for joining our first podcast and be guest for our discussion on holistic financial planning. Thank you, Nitin, for considering me for this podcast. You have a 20 years of experience in the personal financial as a Money management, yes. So, how you wrote one book, concept of financial professional point of view. So, just give brief on that. Yeah, actually, if you ask me, Nitin, my journey started in money management with the book, which very well known all across the globe, Rich Dad and Poor Dad. You must have heard about that. And he talks a lot about rat race. And there is a one sentence specifically which hit me very hard, that even if you win the rat race, still you remain a rat only. So it is not about winning the race, it is about getting freedom from the rat race. So that is a concept, and that which made me to think about what I really should do in my life so that I can get a freedom from this rat race. And that is where the concept of money and life freedom got into my mind. So first concept that I started thinking about, what is money? What should be the purpose of money in individual's life? Many people, especially in middle class families, there is a taboo related to money. Means you can't talk about money with freedom. You can't talk about I should earn more, I should be rich. So that is what my upbringing is. So when I come across this book, and that started me thinking about what I should do in my life about money, I thought that money is important in my life after reading this book. And then I started reading many such books which are related to money, money management, being a millionaire, being a billionaire, and all that. And one more thing which struck me, that 85% of millionaires in the world are first generation millionaires. Yes. What it means, that when you born, it is not required that you should be rich. Yes. But how you take up your life, how you drive your life, that should take you to become rich. And then I started working on my concepts about money, and then I realized that money is not something which should be my destination, or that should not be my target. I want to have different kind of things in my life which will bring lot of happiness in my life. But being in materialistic world, everything what I think of, what brings me happiness, comes with money. So I should have money in my life. And that's why I say that money is a mediator for you in the journey of life. To make it fulfilled, that is what you are talking about, the holistic financial life, or what I say, money and life freedom. So you should start thinking about freedom in life. Being rich may not be you are at freedom, because rich is always, you have to look it into a different perspective, that being a rich means you may have that all materialistic things, but you never know what is beneath to that. Yes. So
you're absolutely right. The money is very important to having the things which is required to status being a rich. So that clarity, how you can say that clarity anyone in this personal own life can brings, and I think goals makes that clarity what I require to live in this life. हाँ, तो goals are important. Means, see, anything which you want to achieve in life, you have to have a goal. Yes. Because goal gives you clarity, goal gives you direction. So, and goal gives you path also. So, आपके लाइफ में अगर गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको ही पता नहीं चलेगा हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सीन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि लोग कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, और सही में स्ट्रैटेजी चाहिए कि नहीं है. मीन्स यू आर ऑल्सो इन दिस फील्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत साल से आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ. तो वी आर मीटिंग लॉट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. यू एग्री विथ मी कि बहुत सारे लोग हमको कन्फ्यूज ही मिलते हैं. कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, और मुझे मिल क्या रहा है इससे, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है. सो आपने जो बोला वो सही है कि यू हैव टू हैव अ गोल. आपके लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है, और गोल अगर आपके सामने है तो गोल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी. जैसे हमने ये हमारा जो बुक है रैट रेस फ्रीडम के बारे में, इन्वेस्टेड और रैट रेस ट्रैप्ड, ये जो हमने टाइटल रखा है वो इसी के लिए रखा है कि आर यू इन रैट रेस, आर यू वर्किंग टू विन रैट रेस, या यू आर वर्किंग टू गेट फ्रीडम फ्रॉम रैट रेस. तो अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए, फ्रीडम चाहिए. तो फ्रीडम के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए. वो कहाँ से आएगा? दैट विल कम फ्रॉम गोल ओनली. सो यू हैव टू हैव अ गोल्स. और गोल क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हमने बात किया था, उस बुक में भी बात किया है. सो हमारा जो फिलॉसफी है, जब बुक में हमने लिखा था, वो फिलॉसफी है कि यू हैव टू हैव अ पिरामिड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. तो देर आर स्टेप्स, एक एक स्टेप को आप कंप्लीट करके जाना है, सो दैट यू कैन रीच. इन वीडियो गेम्स ऑल्सो यू हैव लेवल्स ना. एक लेवल कंप्लीट करो, फिर दूसरे लेवल पे जाओ, तीसरे लेवल पे जाओ. सो दैट देर आर चैलेंजेस विच यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू फुलफिल एंड देन मूव अहेड. तो यहाँ पे देर आर 5 स्टेप्स विच वी टॉक्ड अबाउट इन फाइनेंशियल पिरामिड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. तो पहला है, इट इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. योर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी इन प्लेस. तो आपको भी मालूम है कि व्हेन यू आर रिस्क मैनेजमेंट देखा जाए तो वी स्टार्ट विथ अ कंटीजेंसी फंड. ओके, so contingency fund, how you can you explain what is the experience of having a contingency fund in client's life? You maybe experience till date any sharing. So I can share some. One of my client in Pune, early stage of his life, we started with a financial planning, and he have some investment. So always he as a process we follow the financial contingency fund, and almost 8 years we have not used that fund. But suddenly in COVID time, and they realize due to everything stops, and the only money that we have that we kept for the emergency purpose, but others money are in lying in different asset classes or equity or debt, which is locked. But this is a reserve fund we kept for the emergency. So this we have seen this experience जो मुझे आया उस फैमिली में. तो कोविड के टाइम वो यूज़ हुआ मनी कंटीजेंसी. सेम हैपन इन द हॉस्पिटलाइजेशन होता है किसी के लाइफ में, तो वो यूज़ होता है. तो पीपल हैव अ टेंडेंसी कि ये पैसे कब इन्वेस्ट करो ज़्यादा दैन इमरजेंसी के लिए. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो यू कैन वांट टू शेयर? तो वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं ना, वही से चालू होता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आई डोंट यूज़ दैट वर्ड्स. मैं इमरजेंसी फंड नहीं यूज़ करता वर्ड, ना ही कंटिजेंसी यूज़ करता हूँ. आई यूज़ इट एज अ प्रोटेक्शन फंड. दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, दैट एनीथिंग विच यू थिंक ऑफ you are attracting in your life. So if you are creating an emergency fund, you are preparing for emergency. So हमको emergency नहीं चाहिए लाइफ में, तो हमको क्या चाहिए? हमको freedom चाहिए. So you have to have a protection fund.
तो आपने सही बोला, सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस कोविड के टाइम में ही लोगों को पता चला। उसमें दो एस्पेक्ट थे, एक तो ये कि पूरा बंद था, दूसरा ये एस्पेक्ट था कि बहुत लोगों का जॉब पे प्रॉब्लम आया उस टाइम। देयर आर फ्यू पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड। देयर आर फ्यू पीपल हु हैव टू गो थ्रू 70% 50% रिडक्शन इन इनकम। तो कंपनी ने उस टाइम बोला था कि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आज का सिचुएशन ये है, सो वी आर कटिंग डाउन योर इनकम बाय 50% और से 70%। डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो दूसरा कोई चारा नहीं था, उन लोगों ने कंटिन्यू किया। तो उस टाइम फॉर्चुनेटली जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है उसमें कुछ अच्छा भी होता है। तो कोविड में अच्छा क्या हुआ कि सब बंद था, तो देयर वाज एनी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है। और हमने, इफ़ यू रियली थिंक अबाउट मिडिल क्लास कम्युनिटी टियर 1 टियर 2 सिटी में, तो मोर देन 50% एक्सपेंसेस आर टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल। तो हम जब बात करते हैं प्रोटेक्शन फंड का, वी से दैट यू शुड कीप असाइड योर 6 months expenses. So expenses should include your basic expenses, your lifestyle expenses, your committed annual expenses, EMIs. तो उसको सबको कलेक्ट करो, 1 महीने का बनाओ और 6 महीने का बाजू में रख दो। तो आपने जो बोला वो भी वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन होता है कि ऐसे ही कैसे रखे, उसका यूज़ होने वाला है कि नहीं यूज़ होने वाला है। तो कोविड के टाइम जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ये पूछना बंद किया कि प्रोटेक्शन फंड क्यों चाहिए। लेकिन जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया है, जो नए सिरे से देख रहे हैं लाइफ में, अभी फॉर्चुनेटली कि अभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस तो है कोविड का, लेकिन ये तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि वाई वी शुड कीप इट असाइड। तो फिर लोगों को बताना पड़ता है कि इट इज़ नॉट फॉर योर ग्रोथ, इट इज़ ओनली फॉर प्रोटेक्शन। और वो प्रोटेक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे बोला कि हॉस्पिटलाइजेशन है, मेजर डिज़ास्टर्स है इन लाइफ, जॉब लॉस भी सिचुएशन हो सकता है। यस। तो आई नो वन क्लाइंट जो नए से वी मेट एंड ही स्टार्टेड टेकिंग ज्वाइनिंग विथ अस ऑन दिस जर्नी लाइफ कोचिंग में। तो उसने एक एक्सपीरियंस किया कि उसके पास प्रोटेक्शन फंड नहीं था, तो थोड़ा यहाँ वहाँ पे पैसा रहता है, तो उसका जॉब चला गया बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस एंड ऑल दैट। लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ EMI प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑफ सम कमिटेड एक्सपेंसेस, तो कॉम्प्रोमाइज करके ही हैड टेकन न्यू जॉब with almost 50% cut on his earlier salary. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अभी जिस सैलरी से उसने मूव किया, जो जॉब गया, वो सैलरी अचीव करने में और 5 साल लग जाएंगे। और ही हैज़ टू बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन न्यू कंपनी। तो ये डिफ़िकल्टी होता है, और ये उन्हीं लोगों को पता चलता है जिनके लाइफ में वो कोई इंसिडेंट होता है, सिचुएशन होता है। जब तक ये नहीं होता तब तक लोगों को पता नहीं चलता। तो वी हैव टू गिव दिस स्टोरीज, वी हैव टू गिव दिस रियल लाइफ सिनारियोज टू क्लाइंट्स कि ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं चाहिए तो क्यों प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं चाहिए, क्या है आपके पास, क्या सपोर्ट है, ये हो गया तो क्या करोगे, जॉब लॉस हो गया तो क्या करोगे। जॉब लॉस का मेजर सिचुएशन है कि जहाँ पे प्रोटेक्शन फंड की रिक्वायरमेंट होती है। Fantastic. So now you mentioned about the protection of family. You require protection funds. Now we come to the second stage of personal financial life, that a security or a risk protection, you can say, which require life insurance or health insurance or accidental insurance or home insurance. All these are the insurance which help you to protect the wealth they have created. तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM सिस्टम, it become, there are 4 parts into it. One is your protection fund, second is your term plan, life insurance plan. So life insurance is all about protecting your income generating capacity. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बोलते हैं कि देर आर 2 रिस्क यू ऑलवेज कैरी इन योर लाइफ. वन इज डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग. तो लिविंग टू लॉन्ग के लिए यू हैव टू क्रिएट वेल्थ. डाइंग टू अर्ली यू कैन प्रोटेक्ट. सो दैट इज वेयर इंश्योरेंस कम्स इन टू पिक्चर.
सो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू हैव अ 10 ईयर्स इनकम एज अ लाइफ इंश्योरेंस. सो लाइफ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? एक तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ इंश्योरेंस. ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अ, क्या उसको बोलते हैं कि एक फिक्स स्ट्रक्चर उसको लेके चलना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. एनीबडी हु डोंट हैव एनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनीबडी हु डोंट हैव एनी फाइनेंशियल लायबिलिटी शुड नॉट थिंक अबाउट इंश्योरेंस. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. Yes. तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके पास है, आपके ऊपर है, लायबिलिटी है, तो यू शुड थिंक ऑफ इंश्योरेंस. तो 10 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम शुड बी योर टर्म प्लान. और एक होना चाहिए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, बिकॉज डिसेबिलिटी इज मेजर प्रॉब्लम. ऑन लाइटर नोट, दिस इज नॉट सीरियस, डोंट टेक इट सीरियसली. ऑन लाइटर नोट वी ऑलवेज टेल टू क्लाइंट, इफ यू डाई योर ऑल प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व. जो बच्चे उनका प्रॉब्लम चालू होगा. सो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट फॉर यू, लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर योर फैमिली. बट accidental death and disability insurance is for you, because you are in a situation where you are completely disabled, you are not in position to earn money, but still you are consuming. So consumption is going on, your expenses are going on. So disability is such a situation where family assets get converted into family liability. तो आप किसी का पेट भर रहे हो, कल आपको पेट भरना पड़ेगा. तो दैट इज वॉट वी कॉल्ड एज अ लिविंग डेथ ऑल्सो. इट इज अ लिविंग डेथ. यू कैन डाई, यू आर लिविंग, बट यू कैन डू एनीथिंग. तो उसके लिए इफ यू आर अर्निंग, यू हैव टू हैव 10 ईयर्स इनकम एज अ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन. तो वो एक होना चाहिए. तीसरा होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस. कंपनी के पास, कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, सैलरीड लोगों के लिए बात करते हैं, तो उनका तो कंपनी के पास ये लाइफ इंश्योरेंस भी रहता है, प्रोटेक्शन सिस्टम, डेथ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी रहता है. बट यू नेवर नो वेदर दैट इज सफिशिएंट और नॉट. यू नेवर नो व्हेन योर कंपनी विल स्टॉप लविंग यू. यू नेवर नो व्हेन यू विल स्टॉप लविंग कंपनी. तो आपका खुद का इंश्योरेंस चाहिए. तो यू हैव टू हैव दिस 3 प्रोटेक्शन सिस्टम, एंड फोर्थ कम्स इज योर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. तो व्हीकल इंश्योरेंस इज अ मैंडेटरी, तो उसको वो तो सब लोग लेते ही है. लेकिन उसमें भी हम बोलते हैं कि यू शुड नॉट गो फॉर अ थर्ड पार्टी व्हीकल के लिए स्पेसिफिकली. यू शुड हैव अ जीरो डेप पॉलिसी, फुल कवर पॉलिसी, और हाउस होल्डर पॉलिसी. सो हाउस होल्डर पॉलिसी विल प्रोटेक्ट रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर योर होम, as well as In most of the household policies are sold at the time of taking loan. Okay, so after that, some person may not be renewed. But I have seen this phenomena in Sangli when there is a flood happen. Now people realize the importance of having insurance of home. That was not earlier happen. Okay, so that really changed their life. When if any incident happen, people think about the risk planning rather than just hardly premium of 1,000 or 2,000 rupees of a crore flat, but people are not aware or not buying only because of this is not required right now. Likewise, so what you are saying is right actually. ये यही होता है. This is a psychology. तो जब इंसिडेंट हो तो ही बाजू के, अभी आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. तो वी कीप ऑन कंडक्टिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरा वहाँ पे प्रोटेक्शन ये हुआ था, अवेयरनेस सेशन हुआ था. एंड देन वेयर आई टॉक्ड अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन सिस्टम एंड ऑल दैट. सो देयर वाज डिस्कशन गोइंग ऑन प्रोटेक्शन सिस्टम वगैरह. तो वो सेशन हुआ, उसके बाद में 5 दिन ही उसके बारे में डिस्कशन हुआ, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ. Then after 1 year, I get a call from one of the attendant कि ये एक्स आदमी हमारे साथ काम कर रहा था, उसने अटेंड किया था, आपसे आपका डिस्कशन चल रहा था, क्या उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था आपसे? बोला कि नहीं, उसने नहीं लिया था. बोला क्यों, क्या हुआ? तो दैट पर्सन डाइड. सो दैट पर्सन वॉज वर्किंग एट वेरी हायर पोजिशन इन दैट कंपनी, अर्निंग वेरी स्मार्ट, 2 to 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ का टेक होम सैलरी था.
I suggested him to go for a 2 crore policy. He didn't go for that policy. Why? Because he was diabetic and there was a 30-40% rise in the premium. Loading आया था, तो वो लोडिंग नहीं पे करना है, उसकी क्या ज़रूरत है? इसकी वजह से उसने पॉलिसी नहीं लिया और उसका डेथ हो गया. Now his entire family was actually dependent on him. Now don't have any support. So लाइफस्टाइल ख़त्म हो गया. जो बच्चे के लिए ड्रीम्स देखे थे, कैसे एजुकेशन होगा, क्या एजुकेशन होगा, दैट इज़ ऑल्सो गॉन फॉर टॉस. तो दिस इज़ समथिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड. और जिसने मुझे फ़ोन किया था वो बोला कि सर मुझे टर्म प्लान लेना है, आज की आज लेना है. देन हमने कोटेशन उसको भेज दिया, बाद में कुछ नहीं हुआ. तो जब वो इंसिडेंट होता है ना, बाजू वाले के घर में इंसिडेंट होता है, तो पीपल आर अवेयर, नहीं अभी बाजू वाले के घर में हो गया, अभी मुझे चाहिए. बट देन आफ्टर 10-15 days everything gets settled down. So people are, I would say, unfortunately, people are totally irresponsible when it comes to financial decisions, when it comes to financial protection. Okay. So they feel that I am immortal. So मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला, आई एम डूइंग फैंटास्टिक. लेकिन उनको ये पता नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस तभी आपको मिलेगा जब इंसिडेंट नहीं हुआ है. इंसिडेंट होने के बाद इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली. सो मुझे अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ये करना है, सर्जरी करना है, कैन आई टेक मेडिकल इंश्योरेंस? ऐसे फ़ोन आते हैं. यू कैन मीन्स कंपनी विल नॉट गिव यू मेडिकल इंश्योरेंस. Insurance is given for uncertainty. You're absolutely right. You said that you have to buy insurance when you need not required. Yes, barabar. So, and normally people are aware if they required. So that's a fallacy of personal financial life. Ki people are not cautious or aware also. Some of the aware but not taking decisions. Or so, what's your thought in India? Highest policies are sold in April, March, or January, February, March. JFM. So you are saying one-sided people are not taking decision, and one side it is mostly sale at the time of January, February. So why this happens in India, according to you? Gradually अभी JFM खत्म हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से. क्यों? Because that time it was sold with a tax as a benefit, main benefit. So earlier, you must be knowing that 20 years back, almost 20 years back, वहाँ पे जितना आप इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते थे उसका 20% आपको डिस्काउंट मिलता था फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी. लेकिन पहले वो स्ट्रक्चर था, उसके बाद में वो 1.5 लाख का आया ATC वाला. अभी बिकॉज ऑफ न्यू रिजीम उसका भी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया है. तो नाउ JFM, आई डोंट नो कि JFM कितना काम करेगा, लेकिन उस टाइम जितना भी हो रहा था दैट वाज मेजरली इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़. तो आप इन्वेस्ट करो, मीन्स बहुत लोगों को हम जब टर्म प्लान बताते हैं, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, कि मैं भरूंगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा. मैं प्रीमियम भरते जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. तो पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंसेप्ट कि मैं पैसा भर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा. आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है बट वो सेंस नहीं आता है. तो मुझे रिटर्न चाहिए जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ. तो इसकी वजह से, रिटर्न की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स रिबेट, बहुत सारा पॉलिसीज JFM में बेचा जाता है. आज भी है वो कंसेप्ट, आज भी चालू है. इट इज़ जो डेटा शो करता है, तो डेटा शोज़ की ऑलमोस्ट 40-50% बिजनेस हैपन्स इन JFM because of this tax effect. Tax effect. And so you mentioned about the term insurance. So आज भी वो अवेयरनेस नहीं है कुछ लोगों में कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट ऑफ टर्म एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सो हाउ यू एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज? सी, हम ये बोलते हैं हमेशा कि प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी सेपरेट इन योर लाइफ. प्रोटेक्शन शुड बी टेकन फॉर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट शुड बी डन फॉर इन्वेस्टमेंट. जब भी आप किसी दोनों चीज़ को ब्लेंड करोगे
देन देर इज़ अ प्रॉब्लम कि दोनों तरह का बेनिफिट शायद कम होगा. आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल सिंपल जो क्लाइंट्स को हम बताते हैं कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज सभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक कंपनी, ऑल कंपनीज जिनके पास ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज है. इफ़ योर एज इज़ 30 एंड इफ़ यू आर पेइंग 5,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ प्रीमियम, you will get a cover of approximately 12 lakhs. 12 लाख का कवर मिलेगा, 25 साल का पॉलिसी होगा. सो 5-5 हज़ार रुपये भर रहे हो, 25 साल भर रहे हो, 60,000 पर ईयर. सो यू आर पेइंग अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 15 lakh rupees. You are getting in return 15 lakhs plus 15 lakhs plus maybe some additional bonus. So 30 lakhs plus 10, maybe 40-45 lakhs you will get in return. लेकिन आप ये दोनों को डिवाइड करोगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे. व्हेन यू से लॉन्ग टर्म का एसेट क्लास चूज करो, उसमें इन्वेस्ट करो. और यहाँ पे सिर्फ प्योर टर्म प्लान लो. इफ़ योर एज इज़ 30 एंड यू आर फिट, 12 लाख के पॉलिसी के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा साल का मे बी अराउंड 5,000 रुपीज़. माने एवरी ईयर यू हैव 55,000 रुपीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट. सो पकड़ के चलो, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट्स कंसिडर इज एज अ 50,000 रुपीज़ पर ईयर. तो अगर आप 25 साल 12.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ 25 years, एंड इफ ग्रोज एट द रेट ऑफ से 12%, सेंसेक्स में भी आप इन्वेस्ट करते हो 12%, 15%, 16% वगैरह, तो 12% भी पकड़ के चलते हैं तो भी इट वुड बी मोर देन 60-70 lakhs. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिला आपको, 60-70 lakhs मिला. और अर्लियर क्या होता था, आपको प्रोटेक्शन मिला और उसके साथ मिलता था 40 लाख. तो सेपरेट करने से क्या होता है कि यू वुड बी इन बेटर पोजिशन टू चूज राइट काइंड ऑफ एसेट क्लास डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. हम जो अभी इसके पहले बात कर रहे थे गोल्स के बारे में. तो वंस योर गोल्स आर क्लियर, गोल्स विल गिव यू द टाइम लाइन फॉर इन्वेस्ट, For which period you want to invest. फैंटास्टिक. सो वो जो रहता है पीरियड, उसके साथ में आप एसेट क्लास को जोड़ सकते हो. बिकॉज एवरी एसेट क्लास इज मीन फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. एवरी एसेट क्लास इज नॉट इक्वल. सो डिफरेंट एसेट क्लासेस, डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट रिटर्न्स. तो ये नुकसान होता है. तो ये हमको बताना पड़ता है क्लाइंट्स को कि ऐसा नुकसान आपका हो सकता है. एक्सेल इज़ अ वेरी हेल्पफुल, फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, लेकिन फाइनेंशियल कैलकुलेटर से अच्छा एक्सेल में दिखता है. Number wise, you get a clarity how much you are going to make if you separate it out. Fantastic. So we have discussed about the protection, we have discussed about the risk planning. Now, if you check financial planning, there is a loan planning also. So how you explain about the loan planning in terms of only loan planning right now? लोन प्लानिंग में एक अगर एनालिसिस पहले करना ज़रूरी होता है कि व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स इज क्लाइंट इज हैविंग, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दैट लोन्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट क्लाइंट इज पेइंग. सो रूल ये हमेशा बोलता है कि यू शुड ऑलवेज पे हायर इंटरेस्ट लो ड्यूरेशन लोन्स फर्स्ट. तो अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है, एडिशनल फंड्स अवेलेबल है, दैट शुड बी यूज टू क्लियर योर लोन्स. बराबर. प्रोटेक्शन सिस्टम ने हमने 6 EMI तो बाजू में निकाल दिए हैं. अभी पहला तो क्लियरिंग लोन्स, देयर शुड बी स्ट्रैटेजी. सेकंड, यू शुड टेक डिसीजन विच लोन टू कंटिन्यू. तो लोन इज नॉट ऑलवेज बैड. तो देर आर गुड लोन्स ऑल्सो, देर आर बैड लोन्स ऑल्सो. तो वी ऑलवेज सजेस्ट ऑल क्लाइंट्स टू कंटिन्यू विथ गुड लोन्स एंड क्लियर ऑफ योर बैड लोन्स. सो 2 लोन्स है जो वी ऑलवेज से दीज आर गुड लोन्स. वन इज अ योर हाउसिंग लोन एंड सेकंड इज योर एजुकेशनल लोन. Why these loans are good? Because these loans gives you opportunity to build your assets. Education loan you can build yourself by investing in yourself, you as an asset, जिसका रिटर्न दुनिया में सबसे ज़्यादा है. No any asset class in the world can match the returns of investing in yourself. So that is the first loan. That also comes with some tax benefits. That comes with low interest rate. That comes with 7-10 years का ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू चूज इट.
और इनिशियल टाइम पे जब तक आप कमाने नहीं लगते तब तक आपको EMI नहीं भरना है, आपको यू हैव टू पे ओनली इंटरेस्ट, सो दैट इज़ अ गुड लोन. सेकंड जो है हाउसिंग लोन घर लेते हो, उसका एसेट वो अभी घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर ये लोन लेते हो तो हाउसिंग लोन इज़ अ चीपेस्ट लोन विथ हाइएस्ट ड्यूरेशन, 20 साल 25 साल. सो देर इज़ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इसलिए हम बोलते हैं कि यू शुड कंटिन्यू विथ योर हाउसिंग लोन. रेस्ट ऑल लोन्स यू शुड क्लियर फास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. द वर्स्ट लोन इज़ अ क्रेडिट कार्ड लोन. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. तो ऑल अदर लोन्स, पर्सनल लोन, अगर दूसरा कोई लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो यू शुड क्लियर ऑल सच लोन्स. तो देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी. तो अगर आपके पास 5,000 रुपये ज़्यादा है तो कहाँ पे रिपेमेंट करोगे? हाउसिंग लोन में करोगे, एजुकेशन लोन में करोगे, पर्सनल लोन में करोगे, कहाँ पे करोगे? कार लोन में करोगे. तो ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल टेक यू नियर टू योर फ्रीडम. और स्ट्रैटेजिकली जैसे आपका पैसा कम होगा रीपेमेंट वाला, EMI वाला, वैसे यू वुड बी इन बेटर पोजीशन टू इन्वेस्ट. तो उसको इन्वेस्ट कर सकते बाद. सो लोन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू यू इज अ प्रायोरिटी की कौन सा ड्यूरेशन और ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप प्रायोरिटी डिसाइड करके पे ऑफ कर सकते हैं एज पर योर सरप्लस अलाउड यू दिस. यस. वी हैव सीन द लोन प्लानिंग एंड व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इन द रिटायरमेंट प्लानिंग? सो ये जो हम पिरामिड की बात कर रहे थे, मनी एंड लाइफ फ्रीडम का पिरामिड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. सेकंड स्टेप इज़ लायबिलिटीज. सो लायबिलिटीज कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लियरिंग योर लोन्स, टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, और कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू आर शोल्डरिंग, देन दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. थर्ड जो आता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो थर्ड स्टेज पे आता है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग. सो द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट यू शोल्डर इज़ योर रिटायरमेंट. जैसे हमने इसके पहले बात किया कि डाइंग टू अर्ली के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस. लिविंग टू लॉन्ग के लिए यू शुड हैव रिटायरमेंट प्लानिंग. तो इंडिया में सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. इसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ नाउ बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट. तो रिटायरमेंट प्लानिंग में ये देखना ज़रूरी है कि आप कितने साल तक सरवाइव करने वाले हो, बिकॉज ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है रिटायरमेंट प्लानिंग में. बहुत सारे लोग किसी को हम पूछते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तो व्हाट इज़ योर एज ऑफ सर्वाइवल, बोलते हैं कि नहीं नॉर्मली लोग तो 70-80 साल जीते हैं. तो ऐसा नहीं है. इट इज़ योर फैमिली हिस्ट्री, योर जीन्स आर गोइंग टू मेक यू टू लिव. यस. सो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वी आर कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड फूड, वी आर कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड एयर. तो इसकी वजह से हमारा लाइफ जो है वो कम हो रहा है. उससे लाइफ कम नहीं होगा, लाइफ का क्वालिटी कम होगा. तो यू मे रिक्वायर मोर मनी बिकॉज यू मे हैव फ्रेंड्स, डायबिटीज़ रहेगा, BP रहेगा, हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा. दिस ऑल फ्रेंड्स वी मे हैव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट का प्लानिंग थर्ड स्टेप में आता है. इट इज़ अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बच्चों का एजुकेशन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. बच्चों का मैरिज नाउ इट इज़ बिकमिंग ऑप्शनल. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी उनको कमाने दो, उनको ही करने दो. तो वी ऑल्सो रिकमेंड कि ज़रूरी नहीं है मैरिज का प्लानिंग, बच्चों के मैरिज के लिए फंड्स अलग से निकाल दो. तो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए और रिटायरमेंट सही होना चाहिए. तो रिटायरमेंट का प्लान से आई वुड से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू शुड स्टार्ट इज़ टूवर्ड्स योर रिटायरमेंट. माने जो जेनजी जो हु स्टार्टेड देयर अर्निंग, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड गो टूवर्ड्स रिटायरमेंट प्लानिंग. सो रिटायरमेंट कॉन्टेक्स्ट आप जो बोल रहे थे कि लोग इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते हैं. सो एज योर लाइफ ग्रो, योर requirement of spending money is increases as you grow. Earlier we live together, now we are isolated, husband wife only, father and mother is not living, so that makes you more depend on the retirement funds. So what's your view on that? यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे प्लानर्स भी फंसते हैं कि इन्फ्लेशन रेट क्या पकड़ना चाहिए.
तो इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपको उस टाइम कितना पैसा लगने वाला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, द नॉर्मल आंसर व्हाट यू गेट 50,000 लगेगा, 1,00,000 लगेगा. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. सेकेंड, इन्फ्लेशन यू शुड नॉट कंसिडर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन एज योर इन्फ्लेशन, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली many clients, many investors feel that government inflation is my inflation. It is not your inflation. But it's a personal lifestyle inflation. Also, we have to consider when we have a think retirement actions. तो जब फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल प्लान में there are few assumptions in which inflation is one assumption and that should be taken properly. ऐसा भी होता है जब जैसे एक क्लाइंट के साथ हमारा बात चल रहा था, तो व्हाट ही वाज हैविंग इन माइंड, द फिगर उनके वो जो फायर नंबर बोलते हैं अभी, तो फायर नंबर उनका जो दिमाग में था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, और उससे तकरीबन 3 times वाज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था इन्फ्लेशन का गलत कंसिडरेशन. सो इन्फ्लेशन वाज रॉन्गली कंसिडर्ड, majorly government का inflation, which is nothing has to do with your life, very, or I would say very less to do with your life. Government के inflation से 5 से 6% आपका inflation ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए. When you are planning for 25 years, अगर 5-6% का गैप होता है, it is very big gap because it has a compounding effect. तो उसके हिसाब से आपको ये प्लान करना पड़ेगा. जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट what should be your expenses at the time of retirement based on today's expenses and consideration of inflation. उसके बाद में कुछ डिस्काउंट भी कर सकते हो आप. इफ़ यू हैव अ फैमिली ऑफ 4, मे बी पेरेंट्स आर स्टेइंग विथ यू, उनका कलेक्टिव एक्सपेंसेस है तो उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा. तो यू मे हैव 20-30%, 40% रिडक्शन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. वो कंसिडरेशन होने के बाद you have to find out how many years you are going to survive after retirement based on your family history, not on WHO का figure. Yes. तो वो consider होना चाहिए, and then you have to discount present to present value all that expenses, and then you have to calculate कि कितना invest करना चाहिए. तो this is very important. और आने वाले समय में retirement planning, especially in India, is becoming much more important. और अगर आप प्लान नहीं करोगे, you may have to live without money, and that is a very dangerous problem. Old age poverty. तो everybody has to plan all these things. जैसे normally हम बोलते हैं your parents is not your emergency fund or protection fund, and your children is not your retirement fund. तो आप चाइल्ड को, आपके बच्चे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हो? बीइंग रिटायरमेंट रेडी. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. So we have considered protection, loan planning, retirement planning, tax planning. So all our aspects are interrelated. How you consider normally due to this mobile app or Grow or Zerodha, like app, people are investing in the capital market. They don't consider as a financial life is all related to each other. Can you brief on that? How you relate to that? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया है? What you are talking about, investment had become a purpose. मेरा लाइफ का पर्पस बन गया, इन्वेस्ट करना है, पैसा ग्रो करना है. I will tell you one example. 5-6 years before I got one client. So he was telling me, I have real estate. Age is 65. I have real estate at this place, I have real estate that place, and I'm having this many assets and all that, and everything. दोनों आए थे मियाँ बीवी. उनके बच्चे 2 daughters were in America. So वो यहाँ पे आने वाले नहीं है. तो मैंने पूछा कि पर्पज़ क्या है, बोलो उसका. यू आर टेलिंग मी कि यहाँ पे रियल एस्टेट है मेरा, वहाँ पे रियल एस्टेट है, इतना इक्विटी में है, इतना म्यूचुअल फंड्स में है, इतना फिक्स डिपॉजिट ही है, ये कलेक्टिव ऑल इन्वेस्टमेंट व्हाट यू हैव. टेल मी द पर्पज़, व्हाई यू हैव दिस मनी एंड व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट, व्हाई यू वांट टू ग्रो मनी.
सरप्राइजिंगली देयर वाज नो एनी आंसर. तो इसमें क्या होता है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट टू ग्रो मनी. ग्रो करके करोगे क्या? वाई यू वॉन्ट टू ग्रो योर मनी? दैट शुड बी क्लियर फर्स्ट टू यू. वो जो हमने चालू किया था जिसके ऊपर, मनी इज ए मीडियम, मनी इज नॉट अ गोल. बाय people who are very much into investing, my money should grow more, but why? तो यहाँ पे पर्पस नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम. और इसमें लोग फंस जाते हैं. योर मनी विल ग्रो, बट इफ यू डोंट हैव एनी पर्पस टू दैट, इट इज यूजलेस फॉर यू. वो एक कंसेप्ट है ना कि जिसको अगर एट द टाइम ऑफ डेथ यू हैव दिस ऑल मनी इन योर हैंड्स डिवाइडेड बाय द लास्ट ईयर सैलरी, तो इतना साल आपने वेस्ट किया आपके लाइफ में, बिकॉज दैट मनी यू हैड नॉट कंज्यूम्ड, दैट मनी यू केप्ट व्हेन यू डाई. तो पहले ये डिसाइड करो मेरा पर्पस क्या है लाइफ का. व्हाट ऑल थिंग्स आई वांट टू एंजॉय इन माय लाइफ, व्हाट आई कंसिडर एज अ फ्रीडम, व्हाट ऑल आई वांट, सो दैट आई बिकम हैप्पी इन लाइफ. नहीं तो ऐसा ना हो मेरे पास बहुत सारा पैसा है. दिस इज व्हाट इज द unfortunate part of life, that I have lot of money, but still I am unhappy. Because I am so poor that I have only money in my life. So money should not be your purpose. Money is a medium to fulfill all different purpose in your life. So इसके लिए पहले purpose बनाओ. Why I want to grow money, and then that purpose will tell you कि आपका objective क्या होना चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, एंड देन यू कैन चूज व्हीकल. जैसे नितिन, वी ऑलवेज गिव वन एग्जाम्पल. एवरीबडी गोज फॉर अ टूर, बराबर है, टूर पे जाते हो. तो मैं ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्लाइंट्स को कि वेदर यू गो विथ प्लानिंग और वेदर यू गो विथ नॉट, यू डोंट प्लान फॉर इट. बहुत सारे लोग ये आंसर देते कि हम विदाउट प्लानिंग जाते हैं. तो मैं बोलता कि टेल मी कैसे जाते हो आप, tell me the process. When you say that I go without planning, how you go for your tour? तो नहीं, हम डिसाइड करते कहाँ पे जाना है और निकल जाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्लान नहीं किया है. यू डिसाइडेड डेस्टिनेशन ना, देन यू डिसाइड. फिर सिर्फ फ़र्क इतना है कि देर आर सम टूर्स विच फ्यू पीपल प्लान फॉर द ईयर्स, एंड देर आर फ्यू पीपल हु डू इट इन आवर. इट्स ओके, बट देर इज द प्लानिंग बिहाइंड इट. विदाउट प्लानिंग कैसे जाना है, तो आपको बैग भरना है, घर से बाहर निकलना है, जब 2 रोड आएंगे तब टॉस करना है. टेल आया तो लेफ्ट जाएंगे, हेड आया तो राइट जाएंगे. इफ़ यू गो विद दिस देन इट इज़ अनप्लान्ड, और ऐसा कोई नहीं जाता है. तो इफ़ यू रियली प्लान, रियली टेक एफर्ट्स टू प्लान योर से फ्यू आवर्स, प्लान योर 1 day, मे बी 2 day, मे बी 7 day tour. Why you don't plan for your entire life, which is the biggest tour in the life? तो वो होना चाहिए ना. कौन कौन से डेस्टिनेशन है, कहाँ पे एंजॉय करूँगा, क्या क्या एंजॉय करूँगा, कहाँ किस होटल में रहूँगा, खाऊँगा क्या, पीऊँगा क्या, कौन से कपड़े पहनूँगा. दैट इज़ फॉर योर एंटायर लाइफ व्हाट यू हैव टू प्लान, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ योर मनी. तो मनी एंड लाइफ फ्रीडम तभी आप एंजॉय कर पाओगे व्हेन यू रियली प्लान योर एंटायर लाइफ, रियली डिफाइन व्हाट ऑल द थिंग्स which I would like to include in my life, which will add value to my life. Life is all about adding value. It is not about all these materialistic things. Materialistic things will add value, no doubt about that, but your inner happiness, inner being should be considered always when you are planning. और वो बहुत जगह पे मिस होता है. Got it. So fantastic, Ashish sir. You come on our podcast and we cover whole money perspective about life, and thank you for once again, and thank you very much.